Good morning, students. We are in the sixth chapter of political science, learning about international organizations and mainly the United Nations. Okay, the other organizations we'll be covering later, but we are first looking into United Nations. This organization came up in 1945. Not that there was not any international organization before United Nations. ये पहली international organization नहीं है. एक और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थी इससे पहले, दैट वाज लीग ऑफ नेशंस, बट समहाउ दैट लीग ऑफ नेशंस फेल्ड टू प्रिवेंट द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, एंड आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंडेड, यूनाइटेड नेशंस केम अप. सो दिस वाज kind of a continuation of League of Nations. So it was not the first international organization. League of Nations was there, and after Second World War, obviously the United Nations it developed. Okay. Now we looked into the reforms that United Nations need to have. We divided the reforms into two parts. One was related to its structure, and the second is related to its jurisdiction, that what all things should come under United Nations, what all are the areas in which United Nations should be looking into. The first part we have seen that the composition of especially Security Council, that composition has to improve. Okay. Now in this context we will also be looking about India, and before we move on to the jurisdiction of India, there is one topic which is related to India and the United Nations reforms. We basically want reform in United Nations in both aspects. As far as jurisdiction is concerned, we want the reforms. As far as the inclusion of new members in Security Council is concerned, we want reforms in that area also. तो basically India चाहता है कि Security Council में reforms हो, उसके members की जो permanent members हैं, उसमें there should not be these 5 members only, and other members should also be included. The other day we saw कि एक नए member Security Council के new member के लिए क्या-क्या चीज़ें होना so called important है, if not compulsory. Then we saw that it has to be a military power, it has to be an economic power, it has to be a large country, and other requirements as well, contributed to the United Nations budget. Okay, let us see whether India fits into that criteria. Can India become a member of the Security Council? By Security Council we are meaning permanent members. Okay, the expansion की जब बात आती है कि Security Council को expand करना चाहिए, तो उसमें normally permanent and non-permanent members दोनों की ही संख्या बढ़ाने की बात हो रही है. लेकिन main issue is about permanent members की जो 5 permanent members हैं जिनके पास veto power है. Non-permanent members, if I can tell you the date, then Security Council में non-permanent members before 1965 there used to be 11, and now this number has increased to 15. Okay, तो ये जो Security Council का जो total number है, पहले 11 हुआ करता था, 11 में से 5 permanent and 6 non-permanent. Now this number has increased to 15, which means 5 permanent and 10 non-permanent. तो non-permanent members पहले से ज़्यादा है, पहले 6 हुआ करते थे, now they are 10. तो वहाँ एक्सपेंशन थोड़ा बहुत हो चुका था in 1965. But the main issue is about these permanent members, and India feels that it deserves the seat, and why it feels, these are the points. Okay, an important aspect, because United Nations की हम बात कर रहे हैं, but obviously for us ये जो हमारा पार्ट है कि हमें सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर होना चाहिए, एंड हमें क्या लगता है, हमारे प्लस पॉइंट्स क्या हैं, those points are here. Okay, so basically India supports an increase in the number of permanent and non-permanent members, but we are basically discussing this permanent membership of the Security Council. Okay, second most populous country, एक large country होनी चाहिए, population ज़्यादा होनी चाहिए, definitely India first most populous country is already a member. Second, we should be eligible on this criteria that we are the most populous country in the world after China, of course.
Then world's largest democracy. As far as democracy is concerned, ये भी एक क्राइटेरिया था कि जो भी नए मेंबर्स बने वो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हों एंड दे मस्ट बी कंट्रीज हु promote democracy. So India promotes democracy. India is the world's largest democracy. And कुछ लोगों की माने then India is also the oldest democracy. तो ज़्यादा डेमोक्रेसी की बात है, इंडिया का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है. We became a democratic country in 1950 and ever since we are still a democratic country. There has been no problem with our democracy as such. Okay. जो थर्ड जो एडवांटेज है हमारा that we have participated in all United Nations initiative. United Nations के जितने भी उनकी एक्टिविटीज़ हुए हैं, जितने भी यहाँ पर भी उनके पीस कीपिंग फोर्स गए हैं, जो भी काम यूनाइटेड नेशंस ने किया है उस काम में हमारा योगदान रहा है. ओके, सो यूनाइटेड नेशंस के काम में we have taken keen interest, we have been participating in all their initiatives. So we have participated in all United Nations initiative. तो ये एक प्लस पॉइंट है इंडिया के लिए. Why India should be included in Security Council. रोल इन यूएन पीस कीपिंग फोर्स, इसे कोई डिनाई नहीं कर सकता. यूनाइटेड नेशंस की जब भी कहीं ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ एक ऑब्वियसली फोर्स जाती है. ये मिलिट्री के लोग होते हैं बट यूनाइटेड नेशंस इज़ नो कंट्री, तो वो अलग अलग कंट्रीज़ की मिलिट्री से लोग आते हैं और एक फोर्स बनती है विच इज़ कॉल्ड द यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्स. बिकॉज यूनाइटेड नेशंस का मेन काम तो पीस लाना ही है और ये फोर्स वहाँ पर जाती है. एंड इस फोर्स में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हम हमेशा देखते हैं कि इंडिया की तरफ से होता है. तो पीस कीपिंग फोर्स में हमारे फोर्सेस के लोग हमेशा रहे हैं, तो हमारा ये बहुत बड़ा योगदान है. वी आर सीइंग दैट 22% ऑफ द यूनाइटेड नेशंस बजट उसे अमेरिका देता है, जापान भी बहुत कंट्रीब्यूट करता है, बट हमारा सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन बजट में नहीं है. इवन दो वी आर कंट्रीब्यूटिंग 0.8% हमने देखा था कि इंडिया कंट्रीब्यूट करती है यूनाइटेड नेशंस के बजट में, बट आर बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन इज इन दिस पीस कीपिंग फोर्स. ओके, हम फिजिकली ह्यूमन बींग्स हमारे मिलिट्री के लोग जाते हैं एंड वो इन पीस कीपिंग फोर्स में का हिस्सा बनते हैं. ओके, इकोनॉमिक इमरजेंस, एक इकोनॉमिक पावर होना चाहिए. तो वी आर एन इकोनॉमिक पावर. आई नॉट मेंशन द मिलिट्री पावर, ऑफ कोर्स वी आर अ मिलिट्री पावर. इंडिया आई थिंक इज द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ मिलिट्री मटीरियल. ओके, तो मिलिट्री का सामान खरीदने के सबसे बड़े इंपोर्टर है. चाइना सबसे ज़्यादा ये करता है, लेकिन चाइना खुद अपना बनाता भी है. ओके, तो जहाँ तक मिलिट्री पावर की बात है, obviously India is a military power, no denying the fact. India is an economic power as well. In today's context अगर हम देखें तो हम इमर्ज कर चुके हैं as an economic power also. तो जो भी कंडीशंस एक सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर के लिए होनी चाहिए वो हम देखते हैं कि इंडिया उन्हें फुलफिल करता है. इनफैक्ट इंडिया के कुछ और भी एडवांटेजेस है एंड वी फील that we should be part of the United Nations. But is United Nations का not United Nations, United Nations Security Council की परमानेंट सीट की बात हो रही है. But ये होगा नहीं होगा, it all depends again on those 5 members. Will they allow it to happen? And till such time China is there, and why would these 5 countries? Obviously there has been a lot of talk on this on the international scene. India has claimed that they should be included here. Other countries also want to be included, but it's likely कि ऐसा शायद कभी हो ही नहीं पाए, because those 5 countries will never allow this to happen. ये फिर उनके पावर्स को कम करने की बात है. बट इंडिया के नेगेटिव क्या चीज़ है? Why India should not be included, या फिर इंडिया की चांसेस क्यों कम हो जाती हैं, वो हम देखते हैं. Our rival Pakistan would never want that India should be included. तो ये प्रॉब्लम है इंटरनेशनल सीन पर. अगर हमारे खिलाफ कोई रेगुलरली बोलता है तो इंडिया इन चाइना है, बट चाइना इज नॉट वेरी वोकल. इट इज़ पाकिस्तान, हमारे खिलाफ कोई बोलता है तो पाकिस्तान एंड चाइना. पाकिस्तान अगेंस्ट इंडियाज इंक्लूजन इन सिक्योरिटी काउंसिल. पाकिस्तान कभी नहीं चाहेगा that we should become part of the Security Council. Okay. Next,
Countries like Brazil, Germany, Japan, South Africa, even Argentina, फिर ये countries क्यों नहीं member बने Security Council की? Because they also fulfill these criteria, and in fact, Asian continent से तो China is already a part of this Security Council, but there is continent, entire continent of Africa, this entire continent of South America, of course Australia, यहाँ से कोई representation नहीं है. So Africa continent has not been represented. तो इस हिसाब से तो अगर हम geographical representation देखें, then South Africa stands a better chance than India to be part of the Security Council's permanent member. And South America, we see countries like Germany and Brazil, they should become the members. They will also equally claim, why India, why not us? Okay. Even Japan, economic power है, influential country, and Germany, again, they also fulfill these criteria. So this is about why India should become and why India should not become, but this is only theory here, it's only in discussions. Practically, we don't know anything like this is going to happen. कभी सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप एक्सपेंड हो पाएगी या नहीं हो पाएगी. सो दैट इज व्हाट दिस इज डिस्कस्ड इन दिस टॉपिक, दैट इंडिया एंड द यूनाइटेड नेशंस रिफॉर्म्स. हमारा इस रिफॉर्म में क्या रोल है, हमें इसका पार्ट होना चाहिए, हमारी अपनी लॉजिक है. दैट इज व्हाट वी सॉ. देन फ्यू थिंग्स ऑब्वियसली गो अगेंस्ट अस आल्सो. ओके, so this was about India and the United Nations reform. Basically you have to concentrate on these, that why India should be part of the permanent membership of Security Council, and ये उसके points है, that is what you should be concerned about. Okay, not why India should not be part, that is not very important. You must understand, but this part is more important, why India should be part of the Security Council. Okay, now let us come back to that topic, reforms in the other kind of reform, that is jurisdiction of United Nations. Okay, these points are already given here, so I have only written few points here. On page number 91, if you see क्या क्या होना चाहिए, क्या नया रोल होना चाहिए यूनाइटेड नेशंस का. So as the UN completed 60 years of its existence, the heads of all the member states met in September 2005. तो ये मीटिंग हुई 2005 में, जब यूनाइटेड नेशंस ने 60 years अपने कंप्लीट किए, to celebrate the anniversary and review the situation. कि ठीक है, हमने क्या अभी तक अचीव किया है, क्या और होना चाहिए. And this was an important point, because United Nations it was celebrating its 60th anniversary. The leaders in this meeting decided that the following steps should be taken to make the UN more relevant in the changing context. समय बदल चुका है और ये 45 का पीरियड नहीं है, this is 2005. Lot of new things have happened on the world scene, तो यूनाइटेड नेशंस को भी चेंज करना चाहिए, and new areas where United Nations should be taking interest. The working of United Nations, that should change. The area in which it is working, that should change. तो इसका बेसिकली jurisdiction की बात हो रही है कि यूनाइटेड नेशंस को क्या काम, किस तरह का काम करना चाहिए. ओके, फर्स्ट क्रिएशन ऑफ अ पीस बिल्डिंग कमीशन. एक पीस बिल्डिंग कमीशन होनी चाहिए. पीस बिल्डिंग कमीशन का मतलब है कि टीम्स विच वुड गो टू एन एरिया जहाँ पे कन्फ्लिक्ट है, एंड वहाँ पर उस कन्फ्लिक्ट को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे. So if such things happen with peace building commission, then it is, ऐसा कुछ होता है तो फिर यूनाइटेड नेशंस की एक टीम आएगी, इंडिया एंड पाकिस्तान, एंड हमारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कराने की कोशिश करेगी. दे विल बी लाइक नेगोशिएटर्स. पीस बिल्डिंग कमीशन का मतलब है कि कहीं पर पीस इस्टेब्लिश करने की कोशिश करेगी. अगर दो कंट्रीज के बीच में कोई प्रॉब्लम है तो उसे सुलझाने की कोशिश करेगी. कोई और तरह का कोई प्रॉब्लम है तो उस कन्फ्लिक्ट को दूर करने की कोशिश करेगी. तो एक पीस बिल्डिंग कमीशन होना चाहिए. एंड बट इसमें प्रॉब्लम्स हैं, दैट वी विल डिस्कस, कि कितनी पीस कीपिंग कमीशन और ये फोर्सेस होने चाहिए, कहाँ कहाँ जाएंगे, हम किस किस के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, क्या यूनाइटेड नेशंस
कर पाएगा। ओके, सो दोज आर इश्यूज। बट ऐसी बात हुई कि पीस बिल्डिंग कमीशन होना चाहिए। एक्सेप्टेंस ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी इन केस ऑफ फेलियर्स ऑफ नेशनल गवर्नमेंट्स टू प्रोटेक्ट देयर ओन सिटीजन्स फ्रॉम एट्रोसिटीज। तो अगर किसी देश की सरकार अपने लोगों पर अत्याचार हो रहे हैं और उन्हें नहीं बचा पा रहे हैं, तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज समझनी चाहिए, उन्हें करना चाहिए। इफ सम कम्युनिटी एनीवेयर इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, अगर उनके साथ कोई प्रॉब्लम है, अगर उन पर कोई एट्रोसिटीज, किसी तरह का कोई अत्याचार हो रहा है, देन उन्हें किसको बचाना चाहिए? वहाँ की नेशनल गवर्नमेंट को। बट इफ नेशनल गवर्नमेंट फेल्स टू डू इट, ओके, सपोज उस देश की सरकार ही उन लोगों को बचाने में सक्षम नहीं है या नहीं बचा रही है, देन इंटरनेशनल कम्युनिटीज, उनका रोल आ जाता है एंड उन्हें वहाँ पर ऑब्वियसली अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए एंड दे शुड ट्राई एंड ऑब्वियसली दे शुड लुक इनटू द प्रॉब्लम। तो अगर किसी देश की नेशनल गवर्नमेंट प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पा रही है, स्पेशली व्हेन पीपल, किसी कम्युनिटी के साथ अगर कुछ गलत हो रहा है, देन अगर उस देश की गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पा रही है, देन इंटरनेशनल कम्युनिटी को उसमें इंटरेस्ट लेना चाहिए। ओके, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ ह्यूमन राइट्स काउंसिल, ये दिस वाज वन ऑफ द डिमांड डिस्कस्ड इन 2005, बट दिस हैज हैपेंड। ओके, ये कंप्लीट कर लिया गया है एंड इन 2006 ये ह्यूमन राइट्स कमीशन ये ऑपरेशनल हो गई थी। ये ह्यूमन राइट्स कमीशन ही है जो कि चाइना में many a times they have said that China is not treating its people properly, and उनकी रिपोर्ट में कई बार चाइना का जिक्र होता है। जहाँ पर डिक्टेटर्स हैं वहाँ पर ये ह्यूमन राइट्स कमीशन कई बार ऑब्वियसली दे कम आउट विद अ रिपोर्ट एंड टेल दोज कंट्रीज दैट यू आर नॉट ट्रीटिंग योर पीपल प्रॉपरली। ओके, तो ये ह्यूमन राइट्स कमीशन का दबाव रहता है, स्पेशली ऑन कंट्रीज विच आर नॉट डेमोक्रेटिक कंट्रीज। ये नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज पर ये ह्यूमन राइट्स कमीशन का दबाव ज़्यादा रहता है। ओके, तो ये ह्यूमन राइट्स कमीशन की डिमांड थी, मांग थी कि ह्यूमन राइट्स काउंसिल होना चाहिए, बट ये ह्यूमन राइट्स काउंसिल बन चुका है इन 2006। तो ये 2005 में डिस्कस हुआ था, द नेक्स्ट ईयर इट बिकेम ऑपरेशनल। एग्रीमेंट टू अचीव द मिलेनियम डेवलपमेंटल गोल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, कि वर्ल्ड को का एक डेवलपमेंटल गोल क्या होना चाहिए? हर कंट्रीज का अपना एक डेवलपमेंटल गोल होता है, व्हाट दे हैव टू अचीव, बट व्हाट द वर्ल्ड, ओके, इन टोटलिटी शुड अचीव, क्योंकि पूरी दुनिया का प्रोग्रेस कहाँ तक होना चाहिए? वो जो गोल है दैट हंगर एंड पावर्टी, ये सब खत्म होना चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए, वाटर के जो लोगों को जो पानी की ज़रूरतें हैं उसे पूरा करना चाहिए, सेफ एंड ड्रिंकिंग वाटर शुड बी अवेलेबल टू ऑल पीपल। ये हैं हमारे मिलेनियम डेवलपमेंटल गोल्स। ओके, तो ये 2000 ये जो ईयर्स कंप्लीट हुए हैं इस मिलेनियम के गोल्स हैं कि हमें क्या अचीव करना है एज ह्यूमन बींग्स, एंड एक कॉमन जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर पीपल थ्रू आउट द वर्ल्ड है। जैसे ये किस कंट्री स्पेसिफिक नहीं है, ये एक कॉन्टिनेंट स्पेसिफिक नहीं है। ओके, हम किसी एक पर्टिकुलर एरिया की बात नहीं कर रहे हैं, एंड पूरे दुनिया में एज ह्यूमन बींग्स व्हाट शुड द वर्ल्ड बी एबल टू अचीव। बेसिकली ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बातें हैं, जहाँ पर एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना, हंगर को ख़त्म करना, एंड पावर्टी, these things, availability of safe and drinking water, housing, employment, ये सब है हमारे millennium developmental goals. Okay, you don't have to go into the details, of course, यहाँ पे describe नहीं है what these millennium developmental goals are. It's a huge list, it's a very long list. Okay, तो यहाँ पर agreement था कि हमें इनको achieve करने की कोशिश करनी चाहिए। United Nations का ये responsibility है that they should try and achieve the millennium developmental goals. Condemnation of terrorism in all its forms and manifestations. Terrorism चाहे वो कहीं भी हो, कैसा भी हो, उसको condemn करना चाहिए। Okay, not that कि एक कंट्री में कोई एक्टिविटी है तो उसे terrorism, उसके खिलाफ कंट्रीज नहीं बोल रहे हैं या यूनाइटेड नेशंस में उसके खिलाफ कोई बात नहीं हो रही है, एंड किसी कंट्री में कुछ है तो उसे ज़्यादा
case in Europe, France या लंदन या अमेरिका में अगर कोई बॉम्बिंग होती है तो दैट इज अ वेरी सीरियस टेररिस्ट एक्ट, बट द सेम थिंग टेक्स प्लेस इन say Middle East and India and other countries. Okay, we have seen a lot of bombings in Southeast Asia, in South Asia, in Middle East. हम देखते हैं कि every day we hear these news, but the world doesn't take seriously. United Nations पे उन पे कोई चर्चा नहीं होती है, but we saw कि 9/11, okay, that was also a kind of bombing, and they used the plane as a bomb, but वो terrorist activity है, okay, वो terrorist ही थे जिन्होंने वो activity की थी। तो वहाँ उस terrorist activity को एक international global war against terror and वो सब उसको respond किया गया। But whereas if the same terrorist activities when they take place in other parts of the world, in developing countries or least developed nations, then it is not treated as a very serious act of terrorism. तो ये गलत है कि टेररिज्म कैसा भी हो, कहीं भी हो, उसे कंडेम करना चाहिए, उसे गलत मानना चाहिए। क्रिएशन ऑफ अ डेमोक्रेसी फंड, ये डेमोक्रेसी फंड क्या है? नॉट ऑल कंट्रीज इन दी वर्ल्ड आर डेमोक्रेटिक कंट्रीज। अभी भी बहुत सारी कंट्रीज हैं जो कि डेमोक्रेटिक नहीं है। कई कंट्रीज में हम देख रहे हैं कि डिक्टेटरशिप है, मिलिट्री जनरल्स हैं, कई कंट्रीज में वन पार्टी रूल है जैसे कि चाइना है। ओके, तो वहाँ पे डेमोक्रेसी लाने के लिए यूनाइटेड नेशंस को एक फंड डेवलप करना चाहिए एंड ऐसी कोशिश करनी चाहिए यूनाइटेड नेशंस को कि उन कंट्रीज में डेमोक्रेसी की डिमांड करें वहाँ के लोग एंड वहाँ पे डेमोक्रेसी फाइनली इस्टेब्लिश हो। तो बेसिकली प्रमोशन ऑफ डेमोक्रेसी, ये प्रमोशन ऑफ डेमोक्रेसी के नाम पर ही अमेरिका ने इराक को इन्वेड किया था। ओके, वो भी एक लॉजिक था। वहाँ पे दे ट्राइंग टू डेवलप न्यूक्लियर वेपन्स ऑफ कोर्स, बट दे गेव द लॉजिक दैट वी वर ट्राइंग टू प्रमोट डेमोक्रेसी देयर। ओके, तो यूनाइटेड नेशंस का रोल होना चाहिए कि दे शुड promote democracy throughout the world. I don't know how this logic will apply because United Nations के Security Council में ही एक member है China, which is not a democratic country. Okay, so how this will work, we never know. But United Nations should try and promote democracy throughout the world. ये काम होगा डेमोक्रेसी फंड का। और एक ये तो हो चुका है एग्रीमेंट टू वाइंड अप द ट्रस्टीशिप काउंसिल। ट्रस्टीशिप काउंसिल एक बॉडी थी यूनाइटेड नेशंस की एंड वो ख़त्म कर दी गई है, वो नहीं है, तो उसे ख़त्म करने की बात की गई थी। ये बातें हुई थी 2005 में। तो इसमें 2 थिंग्स हैव बीन अचीव्ड। ट्रस्टीशिप काउंसिल इसको ख़त्म कर दिया गया है एंड ह्यूमन राइट्स कमीशन ये इस्टेब्लिश हो चुका है। रेस्ट अदर थिंग्स, it is not hard to see that these are equally contentious issues for the United Nations. ये इतना सिंपल नहीं है कि आज डिस्कस किया एंड इसको इजीली कर दें। हम क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं अब हम इंटरप्रेट करेंगे इन हर एक पॉइंट को। ओके, लाइक व्हाट शुड अ पीस बिल्डिंग कमीशन डू? पीस बिल्डिंग कमीशन क्या होगा, उसका क्या काम होगा? ओके, वो कहाँ जाएंगे, किस तरह के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे? व्हाट इफ इंडियन पाकिस्तान का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सपोज पीस कमीशन इंडिया आती है, बट इंडिया हैज़ गॉट इट्स ओन एजेंडा। इंडिया कहती है कि नहीं, ये बायलैटरल इशू है, हमें कोई थर्ड पार्टी नहीं चाहिए। देन व्हाट कैन यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग दिस कमीशन डू? ओके, सो व्हाट शुड अ पीस बिल्डिंग कमीशन डू? देयर आर एनी नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, कई तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड। विच वन शुड इट इंटरवीन? कहाँ पर यूनाइटेड नेशंस को जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, ये कैसे डिसाइड होगा? इज इट पॉसिबल और इवन डिजायरेबल फॉर इट टू इंटरवीन? क्या ये पॉसिबल है, क्या ये सही है कि वो जाके इंटरवीन करें कुछ कंट्रीज के इंटरनल प्रॉब्लम्स में? ओके, सेकेंडली, व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी इन डीलिंग विद एट्रोसिटीज? अगर किसी देश में लोगों को सताया जा रहा है तो फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी इसमें क्या कर सकता है, कैसे कर सकता है, इस पर क्लैरिटी नहीं है। व्हाट आर ह्यूमन राइट्स? ह्यूमन राइट्स क्या है? एंड ह्यूमन राइट्स वायलेशन तो बाद की बात आती है, बट पहले ह्यूमन राइट्स क्या है उस पर तो एक कॉमन कंसेंसस बने।
So what are human rights and who should determine the level of human rights violation? ये कौन बताएगा कि यहाँ पर ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन है, ये नहीं है. चाइना सेज कि नहीं हमारे यहाँ कोई ह्यूमन राइट वायलेशन नहीं है, बट ह्यूमन राइट्स कमीशन सेज कि वहाँ पर है. तो हु विल डिसाइड एंड कैसे हम डिसाइड करेंगे कि ये ह्यूमन राइट वायलेशन है और ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन नहीं है. Given that so many countries are still part of the developing world, how realistic is for the UN to achieve an ambitious set of goals such as those listed in the Sustainable Developmental Goal? तो अभी भी डेवलपिंग कंट्रीज बहुत सारे हैं, तो फिर ये सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स इतने सारे कंट्रीज में कैसे यूनाइटेड नेशंस अचीव कर सकता है? अभी ये कोई प्रॉब्लम एक तो कंट्रीज में नहीं है, ज़्यादा कंट्रीज में है. इनफैक्ट कम कंट्रीज डेवलप कंट्रीज हैं, ज़्यादा कंट्रीज तो डेवलपिंग कंट्रीज हैं. तो इन सब में ये सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स को अचीव करना यूनाइटेड नेशंस कैन दे डू इट? इट्स अ ह्यूज टास्क. और वो कैसे कर सकते हैं इसको? कैन देयर बी एग्रीमेंट और अ डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म? टेररिज्म क्या है? क्या इस पर कोई कॉमन डेफिनेशन बन सकती है? हाउ शैल द यूएन यूज फंड्स टू प्रमोट डेमोक्रेसी? ये कहते हैं ना कि एक डेमोक्रेसी फंड होना चाहिए, बट यूनाइटेड नेशंस को कैसे प्रमोट करेंगे डेमोक्रेसी के? विल दे यूज फोर्स? क्या किसी कंट्री में अगर वो कोई डिक्टेटर है या फिर कोई वन पार्टी रूल है, क्या वहाँ पर फोर्स विल बी यूज टू रिमूव देम एंड वहाँ पे फोर्सिबली डेमोक्रेसी लाई जाएगी? हाउ दे विल डू इट? डेमोक्रेसी फंड बना लेना अलग बात है, बट वो हाउ विल द डेमोक्रेसी फंड बी यूज्ड फॉर प्रमोटिंग डेमोक्रेसी इन नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज? तो ये सभी कंट्रोवर्शियल इश्यूज हैं and in where we lot of work has to be done and it's not possible कि इस तरह से डिस्कस करके and यूनाइटेड नेशंस में ये रिफॉर्म्स लाए जा सकें. So that is it, and we have seen India and the United Nations reform को हम पार्ट देख चुके हैं. एक जनरल टॉपिक है कि जुरिडिक्शन में क्या क्या यूनाइटेड नेशंस को करना चाहिए और फिर वो क्यों नहीं कर पाएगा, वो सेकेंड पार्ट है इसका. ओके, तो ये काम यूनाइटेड नेशंस को करने की कोशिश करनी चाहिए, बट उसमें प्रॉब्लम क्या एरियाज है वो भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है. यूनाइटेड नेशंस इन यूनिपोलर वर्ल्ड, बेसिकली हम अमेरिका एंड यूनाइटेड नेशंस उसको डिस्कस करेंगे. एक ऐसी दुनिया जो यूनिपोलर है, जहाँ एक सुपर पावर है, यूनाइटेड नेशंस कितना इफेक्टिव है, इसकी कोई अहमियत है या नहीं है, या यूनाइटेड नेशंस में वही होता है जो कि अमेरिका चाहती है. दैट वी विल लुक इनटू. दैट इज द लास्ट टॉपिक. एंड देन ऑब्वियसली दोज अदर अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे. सो टुडे वी सॉ अबाउट इंडिया एंड द यूनाइटेड नेशंस एंड ऑल्सो jurisdiction एस्पेक्ट में जो रिफॉर्म्स लाने की बात है यूनाइटेड नेशंस में, that topic we discussed. So that's all in this class. Next we will be taking up UN in the unipolar